Hello everyone, welcome to the another lecture of environmental studies. This course is common to secondary diploma for the production, mechanical, civil and electrical engineering programming groups, and this course is also common to the third year diploma courses, that is semester 5 computer IT electronics engineering program group. In this lecture we are going to see our unit outcome 5D. That is our topic 5, social issues and environmental education, and subtopic is sustainable development and environmental impact assessment. To satisfy our topic, we are going to see our course outcome: manage social issues and environmental ethics as life, lifelong learners. What we will learn today: understand how to bring balance between development needs and environmental protection, role of EIA in environment protection. So the agenda points: development versus environment, define sustainable development, concept of EIA, role of EIA in sustainable development, and contents of today's lectures are: define sustainable development, role of EIA in sustainable development. So the learning objective or key learnings are: what is sustainability? In that we are going to see environmental aspect, economic aspect, social aspect, and role of EIA in sustainable development. So we are going to see the concept map of this lecture. Here we see on the center there is a sustainable development, need of development, environmental protection, economic development, social aspects, and role of EIA. So let's start with sustainable development. Sustainability could be defined as an ability or a capacity of something to be maintained or to sustain itself. It is about consuming just what we need to live now, while leaving enough for the people in the future to meet their social, economic and environmental needs. So exactly क्या मतलब होता है इसका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसे बोल सकते हैं? अभी डेफिनेशन में हमने देखा कि हमें जो भी अभी के लिए जितना ही चीजें चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उतना ही हम एनवायरनमेंट से क्या करना चाहिए, उन्हें हमें लेना चाहिए, उससे ज्यादा हमें उन्हें नहीं लेना चाहिए. जो भी रिक्वायरमेंट है, कम से कम रिक्वायरमेंट में हम सर्वाइव कर सकते हैं, और जो भी कुछ चीजें हो रही है वो हमें कम से कम एनवायरनमेंट से लेनी चाहिए. फॉर एग्जांपल वो एनवायरनमेंट से क्या क्या हम ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम मिनरल्स लेते हैं एनवायरनमेंट से, वाटर का कंजम्पशन करते हैं, और बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट से हम लेते हैं. और हमें कितनी लेनी चाहिए? जितनी जरूरत है उतनी, और रेस्ट ऑफ द चीजें वो हमारे फ्यूचर में हमारे जो लोग होते हैं, जो एनवायरनमेंट की नीड्स है, उनके लिए छोड़नी चाहिए. उसे बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ the present without compromising the ability of future generations to meet their own need. Sustainable development is not just about the environment, its focus is much wider than that. तो इसका और भी गहरा मतलब समझाया गया यहाँ पे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है उसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है कि हम अभी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारे डिमांड्स कंप्लीट का फुलफिल करने के जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास हमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ. और जो हमारे फ्यूचर की जो जनरेशन होगी उनके लिए भी क्या करना चाहिए, हमें कुछ एनवायरनमेंट जो है हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें से जो हम एनवायरनमेंट को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें से उन्हें भी कुछ छोड़ देना चाहिए. मतलब जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके फ्यूचर के साथ किसी भी तरह का हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जो अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके. दिस इज नथिंग बट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं है, वो उससे भी मच वाइडर है, जो कि हमारे फ्यूचर से, जैसे कि हम देखते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस हैपनिंग. And what happened because of the climate changes we see?
The seasons, the rainy season, the winters, the summer season are changed their cycles because of increase in the temperature of the Antarctica. The glaciers are melting. Because of that, the sea level is going to increase per year by 2 to 3 inches. So there are many factors. और अभी जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है. सो हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी चाहिए कि जो हमारा फ्यूचर है उन्हें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में. उसे हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जैक्टली देखते हैं कैसे करते हैं और एग्जैक्टली होता क्या है. तो फर्स्ट स्टेज में हम देख सकते हैं जनरेट रिसोर्सेज विदाउट अफेक्टिंग एनवायरमेंट. Generate resources without affecting environment. So what could be the different types of resources we can generate without affecting environment? So there are many types of the resources like solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy. So those are our resources. With the help of that, we can generate energy without affecting environment. But nowadays we can see what are the different resources of the human beings to generate energy are natural gas, crude oil, petrol, diesel, coal. So because of that, lots of pollution happens, and because of that, we can see the phenomenon like global warming, climate changes are happens. So ये सब जो चीजें हैं हमें नहीं करनी चाहिए. तो हमें किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए? ऐसी चीजें जिनसे हमें एनर्जी भी मिले, ऐसे वो रिसोर्सेस हो जो एनवायरमेंट को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे. और ऐसे कौन से रिसोर्स है? सोलर एनर्जी है. सोलर एनर्जी से एनवायरमेंट को किसी भी तरह की हानि नहीं होती. दूसरा है विंड एनर्जी. तीसरा है टेडल एनर्जी. चौथा है जियोथर्मल एनर्जी. जो ये सारी एनर्जी सोर्सेस से उनको एनवायरमेंट में किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं होता है और उन्हें हम बोलते हैं क्लीन एनर्जी सोर्सेस. तो इस तरह से जो एनर्जी सोर्सेस है उन पे हमें ध्यान देना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज renewable energy sources to overcome the pollution of the environment. So let's see the second factor, economic development that is connected without depletion of natural resources for future generations. Nowadays we can see for earn money to improve economy, the different countries using different energy sources. Like we are understand by taking an example of the Middle East. What happened in the Middle East? The Middle East economy is totally depends on the crude oil. To get more economy, the countries in the Middle East absorb much more resources, and because of that, there is endangered. That is, those resources must be ate within some years. तो मतलब क्या होता है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है जैसे कि इराक हो गया, ईरान हो गया, जो ऐसी जो कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गया, ये जो कंट्रीज है वो टोटली डिपेंड्स, उनकी जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड्स है क्रूड ऑयल. और उस ऑयल का वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल वो क्या करते हैं, निकालते हैं और बाकी के जो कंट्रीज है उन्हें बेच देते हैं. लेकिन उससे क्या हो जाता है कि वो जितना जितना क्रूड ऑयल निकलते जाएंगे, क्रूड ऑयल बनने के लिए ओके बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ क्रूड ऑयल नेचुरली. बट एग्जैक्टली वो क्या होता है, जब जितना जितना क्रूड ऑयल वो निकलते जाएंगे, कुछ सालों में, आगे आने वाले 50-100 सालों में वो खत्म हो जाएंगे और उसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. इसलिए हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं वो भी किसी लिमिट में हो जाए, लिमिट से एक्सेड ना हो जाए, क्योंकि आने वाली फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है. अनदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं कि टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द कंट्रीज लाइक चाइना बिल्ड मच मोर dams, okay, high capacity dams. Because of that, natural resources are comes in the endanger.
तो ऐसे जो सोर्स है, जैसे चाइना ने डिफरेंट डिफरेंट डैम्स बनाए, या किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है टोटली वुड्स पे डिपेंडेंट है, या और कोई जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी किसी स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, तो उन्हें अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए, हद से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो रिसोर्सेज है उनका डिप्लीशन नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे वाले आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती। और तीसरा है मेंटेन बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड एंड एनवायरमेंट। सो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड एंड एनवायरमेंट। कैसे कर सकते हैं, बैलेंस को कैसे कर सकते हैं? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड एंड एनवायरमेंट। सो लेट्स सी next slide. So let's start with sustainable development. Sustainable development is a balance between three aspects: environment, economic, and social. So here we can see in this diagram, in this weight diagram, we can see the economy, the society, and the environment are correlated with each other. And the common portion in all three is nothing but the sustainability. What exactly sustainability can do? This could do the balance between the economy, the society, and the environment. Sustainable development is all about creating equal opportunity to all members to ensure a strong and healthy society. Sustainable development also focuses on finding better ways to do things without affecting quality of our life. So, how to do the sustainable development? Here we can see. We have to protect our environment, take care of our society, and improve our economics. Let's understand this Venn diagram by different kinds of energy sources. Suppose here we can use the energy source as a coal. So what's happened? Because of use of coal, there is huge problems to the environment. But here we can see the society gets the energy, and there we can see the coal having low price. That's why our economy gets increases. But simultaneously, we can see the different problems here. Society also gets the energy, but society faces the problems like the air pollution, acid rain. Here we can see because of the air pollution, the health of the air peoples gets problematic. Here we can see again economic problems. That's why we have to use the clean energy sources like solar energy. Because of use of solar energy cannot affect the environment. If the environment get not affected, we can terminate the problems like the acid rain, air pollution. Here society gets the clean energy as well as their health is good, and because of their health there is no problem for the health, their economy also boost. Okay, here for the solar energy what time investment is required, but there is no running cost for 25 to 30 years. This is the thing about the sustainable development. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो डायग्राम्स है, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोसाइटी हो गया, दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम कोई भी एनर्जी सोर्स, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होती है हम एक एग्जांपल से देखेंगे। सपोज हमें कोई भी एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं, सपोज हम थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो थर्मल एनर्जी में हमारा प्राइमरी सोर्स क्या होता है? कोल होता है, कोयला, और उसी वजह से क्या होता है? एनवायरमेंट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी कोल निकालने के लिए हमें माइनिंग करना पड़ेगा, वहां पे एनवायरमेंट का डिप्लेशन हो जाएगा, उसके बाद हम कोल को बर्न करेंगे, आफ्टर बर्निंग उसका क्या होता है? स्मोक क्रिएट होता है, एश क्रिएट होता है। ओके, स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन हो जाएगा, उसकी उसमें से जो फ्लू गैसेस निकलते हैं उसमें SO2 होता है, NOx होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेंगे। एयर पोल्यूशन जो है वो सोसाइटी को प्रॉब्लम्स कर जाएंगे, नेचर एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम कर जाएंगे। सोसाइटी को एनर्जी मिलेंगी लेकिन उसके साथ साथ उसे हेल्थ प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स को क्या प्रॉब्लम हो गया? इकोनॉमिक्स को क्या, हर टाइम एनर्जी क्रिएट करने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा। ओके, बेसिकली हम अब देखते हैं कोल का प्राइस वैसे तो लो है, लेकिन क्या हो जाता है कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जो एसिड रेन देते हैं हम, या सोसाइटी को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से सोसाइटी अनहेल्थी बन जाती है और उसकी वजह से इकोनॉमिक भी प्रॉब्लमेटिक्स में आ सकता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
where we are going to see we are using a clean energy sources like solar energy. अगर हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं तो हमें माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसकी वजह से जो सोलर से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रह जाएगा, सोसाइटी को एनर्जी मिलेंगी, उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे थे कुल की वजह से वो नहीं होंगे, एसिड रेन हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, ऐसे जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। वैसे तो हम देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी के लिए जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो हाई है, लेकिन रनिंग कॉस्ट निग्लिजिबल है। इसका मतलब है 25 टू 30 इयर्स के लिए रनिंग कॉस्ट का कोई भी मौजूदा कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं है, उसे हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और उसकी वजह से हमारे जो पैरामीटर्स हमें जो चाहिए थे वो हमें मिल गए, और उसके साथ साथ हमें मिल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड हेल्थ सोसाइटी। ओके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि हम देखते हैं मुंबई में एयर क्वालिटी ऐसी हो गई, दिल्ली में ऐसी हो गई, तो ये सारे हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो हमें नहीं झेलने पड़े। सो दिस इज नथिंग बट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं redefine 3 components of सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला कौन सा पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉफिट क्या क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है प्लेनेट का, और सोशल इंक्लूजन क्या है पीपल की। तो पहला देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉफिट। जैसे कि हम देख सकते हैं वही एग्जांपल लेके हम जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था, वी आर गोइंग टू द सेम एग्जांपल व्हिच वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड, that is energy generation. In first example we are going to see we are using a thermal power plant with the help of we creating generating energy. For that we need continuous cool, and we are taking another example of solar energy. In the solar energy we must have just one time capital investment, after that there is no maintenance charge, no running cost. So what's happened in the first plant, we require tons of coals every day to generate energy. There is a huge maintenance of the plant, there is a transportation cost. So what's happened, the economic growth gets decreases. Another parameter we can see with the first example, environmental protection. There is no environmental protection. The thermal plant causes air pollution, which also causes global warming, climate changes, and so social inclusion. In the view of social inclusion, we can see unhealthy society because of air pollution, global warming. So with the help of second example, we can see here we can see we do not require continuous energy feeding. That the solar energy is freely available. That means the cost we are spending, the money we are spending on the thermal power plant, we do not have to spend that much of the money. That means our economy is growing. In the same case of environmental protection, the solar energy cannot do environmental pollution. That's why we can see our environment is get protected, and our environment get protected. In the social inclusion, we can see we get a healthy society. So those are nothing but the components of the sustainable development. With the help of this parameter, we can see what we are doing. This development is sustainable development or not a sustainable development. So environmental aspect. What are the environmental aspects we are going to see here? The natural sources used like mineral resources, fossil fuels, consumptions, forests, rivers, biodiversity, etc. Avoiding or exploitation of renewable source system, environmental management, for example, solid waste management, hazardous waste management, conservation, biodiversity, energy efficiency, electrical consumption. सो अगर हम एनवायरमेंटल के एस्पेक्ट से देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या दिखता है, हम कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें हम देख सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स,
का कंजम्पशन करना, जो फॉरेस्ट है, जो हमारे जंगल है, उनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो हमारे रिवर्स है उनका हम यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी का है, हमको क्या करते हैं, हम यूज कर सकते हैं। अब मिनरल सोर्सेस का कहाँ पर यूज करते हैं, हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमंस नीड्स। फॉसिल फ्यूल्स ऑटोमोबाइल्स में हो गया, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनको रन करने के लिए क्या लगता है, हमें फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत होती है। फॉरेस्ट की जरूरत क्यों होती है, हमारे फॉरेस्ट की जरूरत होती है घर बनवाने के लिए, जो पेजेस हमारे दिखते हैं पेपर से, वो फॉरेस्ट की तरफ से ही बनते हैं। दूसरा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे रहने के लिए जगह भी बढ़ती जाती है, उसके लिए हमें फॉरेस्ट कट करना पड़ता है। उसके वजह से भी हम फॉरेस्ट का नेचुरल रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो रिवर से जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएंगे वैसे वैसे पानी की जरूरत बढ़ती जाएंगी। उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि रिवर्स का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। और आगे आ गया बायोडाइवर्सिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है उनका हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स अचीव करने के लिए टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, कि अभी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन कम करने के लिए, मतलब जितना चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक पॉपुलर एग्जांपल देख के हम समझ सकते हैं, जैसे हम शादी में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग जो खाना है वो वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये इस तरह की आदतें जो हमें क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। और जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, उससे हम देख सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें से जो ई वेस्ट होता है या फिर कोई भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे हमें रिसाइकल करना चाहिए। ओके, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है, वो जो हजार्डस मटेरियल है उसका मैनेजमेंट है वो सिर्फ तरह से करना चाहिए। उसकी वजह से ना हो जाए कि वाटर पोल्यूशन हो जाए, सॉइल पोल्यूशन हो जाए, या जो भी उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे है कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन हो उसमें हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है वो हमें और भी स्ट्रिक्ट करने चाहिए, और लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो कोस्टल एरिया है, जो भी हमारा कोस्टल एरिया है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के पेड़ होते थे, वो क्या करते हैं, वो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते थे। अभी क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज वो सारे नष्ट हो गए। तो उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी डायरेक्टली सिटी में आना जाना शुरू हो गया है। और उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर जो जो एनिमल्स थे या जो भी मरी लाइफ थी वो पूरी भी एंडेंजर्ड जोन में आ गई थी। तो इस तरह की एक्टिविटी है वो हमें कम करनी चाहिए। दूसरा है एनर्जी एफिशिएंसी, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। ओके, अगर एफिशिएंसी हाई हो जाएगी तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है डेफिनेटली धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में हम देख सकते हैं अननेसेसरीली हमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स है वो अननेसेसरीली यूज नहीं करने चाहिए, मतलब जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। आफ्टर द यूज ऑफ दैट उन्हें हमें बंद करना चाहिए। एंड द अनदर पॉइंट इज पोल्यूशन कंट्रोल। In pollution control, we are going to see what are we can control. That is we can control the air pollution, water pollution, light pollution, noise pollution. In previous lecture, we can see how to prevent those kind of pollutions, how to minimize the concentration of NOx, SOx, excessive nutrients in water bodies, change in land use and land cover. ये हो गया पूरे हमारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, इनकी वजह से हम हमारे एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम पहली बात देखें कि एयर पोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स टू ओवरकम द एयर पोल्यूशन। सो देयर इज वेरी सिंपल, यूज ई व्हीकल्स। ई व्हीकल्स runs on the electrical energy, and how the electrical energy we get through the solar energy. That's why the air pollution gets minimized. In automobile sector, we can see approximately 35 to 40% air pollution is due to the automobile sector. If we completely shift it to the e-vehicles, we can definitely control the air pollution. Again, important parameter is water pollution. There are various ways to
control water pollution, treatment of the sewage water plants. There is one best example of that. We can see the land pollution. In land pollution, we have to identify the waste management system. We have to plant trees. For the noise pollution, we can see use of the best quality silencer. We can control the noise pollution. So there are a number of ways to control the pollution to save our environment for the sustainable development. So in the sense of economic aspects, how the sustainable development is, we are going to see. First one is profits, cost saving, economic growth, research and development, cost of underemployment, job growth, revenue contribution to GNP. So what are the different points and how they are going to help in our economic aspects we are going to see in next lecture. Here we will stop. We will meet again in next lecture. Thanks for watching this lecture.